मर्डर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਡਸ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਡਿਊਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਵੈਪਨਸ, ਵਹੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, AGTF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਗਾ, ਆਰੋ ਠੱਕਰਪੁਰਾ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰੋ ਵਿਲੇਜ, ਪਾਸਨਵਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗੇ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਆਰਓ ਵਿਲੇਜ ਭਾਈ ਲਾਲੂ, PS ਸਦਰ ਪੱਟੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਸੀਆ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, PS ਭਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ SSOC ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਡਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तो पंजाब पुलिस ने पीछे जो बलटोहा सरपंच, बलटोहा विलेज के एक्स सरपंच जर्मन सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां करी हैं। जो मेन अक्यूज थे, जो असिडेंट्स थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, सेंट्रल एजेंसी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह, 2 शख्स हैं, दोनों के नाम जोबनजीत सिंह, उन्हें SSOC मोहाली की टीम ने, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की टीम को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन में पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा, ये आरओ विलेज कलसिया कला, अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह, ये 3 लोग जो पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में, पटना में गई, नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर, छत्तीसगढ़ और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये 2 असेलेंट्स थे, सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और जो 2 सपोर्ट मॉड्यूल के जो 2 जौबनजीत थे इन्हें मोहाली SSOC ने गिरफ्तार किया और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज ये तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था।
तो ये सारा जो मर्डर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असिलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था, और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी वाइल देवर ऑन द रन उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरदार भगवंत मान की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध पे कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा, जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन या उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर देयर क्राइम्स एंड द लीगल लॉ विल कैच अप। पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू फाइट दिस मैनेजर्स ऑफ पंजाब। हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर जगह एक जरा इन्होंने अपना नासूवाल जरा मेन बंदा है ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रंजिश ਸੀ। सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर में चले गए, कोई ना कोई स्टेक ग्रुप रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेक ग्रुप है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद चले जा रहे हैं। ये ट्रेंड हमने देखा है। ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट जो क्रिमिनल नेटवर्क्स है उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में शेल्टर मिल जाता है और ये मतलब ये कह रहे हैं ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और उस केस में भी मैं बताना चाहूँगा अगर आपको दोबारा चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगा। तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं हमने 100% सारे केसेस सॉल्व। सच्चाई है लगातार पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, उसमें क्या बताइए? देखिए कई बार सही भी होती है, कई बार एक्सैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक होती है। जैसे स्पेशली जो हमने ग्रेनेड वाले मसलों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब जैसे 4-5 लोग क्लेम कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं है, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है सोशल मीडिया की। सर देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन यू, आपको उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशली जो एआई के ऊपर आज सुनील ठाकर ने भी कहा है कि सीएम का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरा सवाल है जो आप लोगों ने एक एफआईआर किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुधीर बादल और बाकी लोगों को नेम किया है, क्या बेसिस है उसका और क्या ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके एसीएस मोहाली में आप लोगों ने किया था उसको? Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comment. डीजीपी साहब ने सर अपना बता दी, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको चिट्ठी लिखी है शिकायत की है, उस पे क्या है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है, तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है। जैसे क्राइम की यानी डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, इन्हें अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछते हैं तो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक उनका जो वर्किंग है क्योंकि सभी चीजें मेरे संज्ञान में नहीं होती और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही
उस पर डिसीजन लिया जाता है। सर अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल उसमें काम कर